Hello students, we completed binomial nomenclature. फिर से रिवाइज करेंगे. कल मैंने आपको बस थोड़ा ब्रीफिंग किया था. What was that? Binomial nomenclature discovered by Carolus Linnaeus. Binomial nomenclature discovered by Carolus Linnaeus. It is scientific method. It is, मेरे साथ बोल रहे हो ना, दो बार बोल रही हूँ आपके लिए. It is scientific method of naming organism. Naming organism is nomenclature. Naming organism is nomenclature. Who discovered nomenclature? Who suggested binomial nomenclature? Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus discovered binomial nomenclature. Binomial nomenclature. Binomial nomenclature. Right? Carolus Linnaeus worked like huge contribution in the field of taxonomy. Okay. Taxonomy में mainly classification, nomenclature, etc. सीखा जाता है. Right? So binomial nomenclature by Carolus Linnaeus. Right? It is now ruled, or the things are governed by ICBN. बोलो 5 बार. ICBN, International Code of Botanical Nomenclature. International Code of Botanical Nomenclature. ICZN, International Code of Zoological Nomenclature. International Code of Zoological Nomenclature. So binomial suggested by Carolus Linnaeus. Rules are now upgraded, modified, decided by ICBN, ICZN. What are the rules? Each organism has one unique name which has 2 parts. Each unique name has 2 parts. The name is universally accepted. First part is of generic name. Generic name. Second half is species epithet. Second half is species epithet. Okay, the language used is always Latin, sometimes Greek. If any other language used, then it is Latinized. The word is Latinized. When binomial is handwritten, underlined separately, if printed, it's in italics, cursive style में लिखा जाएगा. Right? Length of generic name 3 to 13. Okay, correct कर रहे हो ना? 3 to 13. Name of species 3 to 13. Right? Okay, then what we said? In front of binomial, if scientist name who discovered the species for the first time, scientist who described the species for the first time is called author of the species. उसको हम क्या बोलेंगे? Author of the species. Right? So this author of the species name, ये author का name binomial के सामने लिखा जाएगा. उसको हम बोलेंगे citation. उसको हम क्या बोलेंगे? Citation. Writing down author's name in front of binomial is a citation. Right? जैसे एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में Mangifera indica. बोलो स्पीसीज नेम क्या है? स्पीसीज एपिथेट क्या है? इंडिका. जेनेरिक नेम क्या है? Mangifera. और टोटल Mangifera इंडिका क्या है? बाइनोमियल नेम ऑफ वन स्पीसीज. बात को समझ रहे हो सब लोग? अच्छे से बेटा, अच्छे से सुनो. सी फर्स्ट हाफ इज generic name. First half. Second half is species epithet. Right?
को स्पीसीज एपिथेट बोलते हैं। ये सेकंड पार्ट को स्पीसीज एपिथेट बोलते हैं। फर्स्ट हाफ जेनेरिक नेम, सेकंड हाफ स्पीसीज एपिथेट, दोनों मिला के स्पीसीज का नाम जो यूनिक है। ओके, और बायनोमियल में दो पार्ट होते हैं, ये एक ही नाम है। इट इज बायनोमियल नेम ऑफ वन स्पीसीज and that is unique, one name which is universally accepted, right? Okay, अब और छोटे छोटे रूल्स है वो बाद में देखेंगे टेक्सोनॉमी के साथ। So yesterday we wrote the rules, right? They are there given in NCERT on page number 7. Okay, साइंटिस्ट नेम जो बाद में लिखा जाएगा इसके साथ साइटेशन जो हमने बोला था, ये साइंटिस्ट का नाम एब्रिविएटेड फॉर्म में होता है। LINN लिनायस या लिनायस का नाम इतना बड़ा है कि ओनली L, जैसे मैंने कल लिखा था, इट मींस लिनायस, वंडरफुल फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। सो ओनली L in taxonomy means Linnaeus. What the contribution? Great scientist. ठीक है सर, कल हमने ये बायनोमियल के बारे में बोला, अभी फिर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये पूरा नाम स्पीसीज का बायनोमियल है और ये पार्ट को स्पीसीज एपिथेट बोलते हैं। ओके, डन। So this is what is about binomial nomenclature. Now come to the next part. ये बायनोमियल, राइट, ये अलग अलग रूल्स, ये पूरे एक सिंपल वर्ड्स को रिलेटेड है, that is classification. See, classification even we do in day-to-day life. Your subjects are classified. Physics, chemistry, botany, science, maths, arts, right? It's what's that? Classification. Okay. See, you are classified as students of blah blah standard. आपके स्टैंडर्ड के अनुसार आप स्टूडेंट्स कैटेगरी को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। Okay, so see, classification is merely grouping and subgrouping. हम जो भी मेनी स्ट्रक्चर्स को डील कर रहे हैं, ओके, क्लासिफिकेशन नीड्स ह्यूज नंबर। औरंगाबाद में समझ लो राइट नाउ 1,00,000 स्टूडेंट है। औरंगाबाद में राइट नाउ टोटल 1,00,000 स्टूडेंट है, राइट। 1,00,000 स्टूडेंट को, ओके, 1,00,000 स्टूडेंट को मैंने अगर स्टैंडर्ड वाइज डिवाइड किया, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट, ओके, चलो ये पूरे हो गए। अब ये है मेरे 11th और 12th के स्टूडेंट, राइट। अब 11th 12th के भी यहाँ पे मैंने लिखे आर्ट्स के स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट्स, राइट। तो ये है पार्ट मेरा पूरा साइंस के स्टूडेंट्स। देखो व्हाट इज दैट, ये ह्यूज ग्रुप को मैंने अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया, राइट। सो दिस इज ह्यूज ग्रुप, मेनी स्टूडेंट्स, I am classifying them on the basis of similarities and differences. Okay, what is similarity? All students of 11th, that is similarity. All students of 12th, that is similarity. Okay, अब 11th 12th में भी आर्ट्स का 11th, कॉमर्स का 11th, साइंस का 11th, सेम थिंग विद 12th. सो देखो ये ग्रुप जो है ये 11th 12th बच्चों का, राइट, उसमें ये बच्चा जो यहाँ पे बैठा है, राइट, ये बच्चा जो यहाँ पे बैठा है और ये बच्चा छोटू जो यहाँ पे बैठा है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, राइट, ये बच्चे से क्लोज रिलेशन में है, उनमें सिमिलरिटी ज्यादा है, 11th का है 12th का है, ये दोनों में सिमिलरिटी ज्यादा है। और ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के छोटू से बहुत ही अलग है, ये होशियार है, सिंसियर है, फोकस्ड है, ओके, इसको खेलना कम है, अपने करियर के बारे में सोचना है। मैडम प्लीज प्लीज मैडम इस व्हाट दैट, ठीक है, फर्क समझ लो, ओके। और अगर मैंने बोला ये दूसरा बच्चा है 11th का, so these two students
11th के साइंस के बच्चे, बराबर। सो दे आर वेरी मच सिमिलर। 11th का साइंस का बच्चा 12th के साइंस के बच्चे से थोड़ा हटके है, राइट। ये तो बहुत ही ज्यादा हटके है और ये छोटू तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। Isn't it? We are considering percentage extent of similarity and differences. These two are 100% similar. These two are, right? These two are 90% similar. These are 80% similar. These are 10% similar. Just student, right? So I repeat. What is classification? Classification is merely grouping and subgrouping. ये बड़ा ग्रुप, इसका सबग्रुप, इसमें फिर से सबग्रुप। Classification is merely grouping and subgrouping on the basis of similarities and differences. Similarities and differences के कौन से प्रकार? What is that? Extent, percentage of similarity and differences are considered. Extent of similarity and differences are considered, and accordingly they are placed in this box. So this box is divided into groups, subgroups, and by considering percentage, extent of similarity and differences, more the similar, smaller the group, more the difference, distant the groups, right? एक ही ग्रुप में, एक छोटे ग्रुप में है तो वो ज्यादा सिमिलर है, ओके। अलग अलग ग्रुप में है तो वो ज्यादा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, चलो आपकी फैमिली, you, your sibling, your mother, father, smallest group, genetically very much similar. You and your sibling genetically very much similar. आपका कजिन, हाँ आपसे सिमिलर है लेकिन थोड़ा ज्यादा डिफरेंट है, ओके। कजिन का कजिन, हाँ सिमिलर है लेकिन और डिफरेंट है। Are you getting the extent of similarity and differences? By considering extent, percentage of similarity and differences, organisms are classified. Organisms are classified and they are allotted to that particular group. This is called classification. So what I wrote, definition, grouping and subgrouping done on the basis of extent, percentage, जिनको ये extent word में दिक्कत है, इनका percentage of similarities and differences is called classification. अब ये इतना extent देखना है, similar को एक जगह रखना है, दूर रखना है, ये इतना क्यों करना है? ऐसे क्यों करना है? Right? Classification is very much needed for systematic study. For example, देखो चलो, ये अरुणबंद का टोटल स्टूडेंट का पॉपुलेशन, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 11th का, ये 12th का, राइट। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, साइंस में भी ये इधर जो बैठे हैं बच्चे, राइट, ये वाले बायो, 11th, 12th बायो, साइंस, बायो, that too coming to GD's biology classes, very good, right? ये ग्रुप जो है ये GD's biology classes का, GD's biology classes का ये है होम ब्रांच उस्मानपुरा का और ये है सेवन हिल्स का ब्रांच, राइट। यहाँ पे भी 11 के भी सेवन हिल्स का ब्रांच as well as home branch. Are you getting the criteria? Okay, so क्लास में समझ लो, आप बैठे हो मेरे सामने, okay, so आपको मैं कैसे क्लासिफाई करूंगी? स्टूडेंट ऑफ औरंगाबाद, स्टूडेंट ऑफ 11th बायोलॉजी, देखो स्टूडेंट ऑफ औरंगाबाद, राइट, स्टूडेंट ऑफ 11th बायोलॉजी गोइंग टू GD's biology, home branch, right, morning batch sitting in second row, isn't it? बड़े क्लासिफिकेशन से आपके इंडिविजुअल लेवल तक क्लासिफिकेशन आ रहा है, बड़े क्लासिफिकेशन से इंडिविजुअल लेवल तक क्लासिफिकेशन आ रहा है, उससे सिस्टमैटिक स्टडी होती है। Okay, I can communicate कि मेरी ये बैच का वो बच्चा ऐसे परफॉर्मेंस कर रहा है,
can group, I can make the study simple. How come? देखो हम, right? So we are discussing needs of classification. Why classification is needed? Point number 1, diversity demands classification. Right now. Point number 1, diversity demands classification. Diversity demands classification. जब औरंगाबाद में लाखों स्टूडेंट है तो क्लासिफिकेशन की जरूरत है। औरंगाबाद में एक ही स्टूडेंट है तो क्लासिफिकेशन की जरूरत है ना, राइट? सो डाइवर्सिटी मतलब ह्यूज नंबर, विविधता। बहुत स्टूडेंट्स है, उनमें विविधता है। सो जब भी आप whenever you are dealing with huge number, with variety of structures, variety of things, right? Then that huge number is classified. The huge number is classified or huge number can be properly dealt. ये huge number के साथ हम अच्छे से काम करेंगे when we are discussing classification, when we are using classification. So what we wrote? Diversity demands classification. जब भी विविधता है तो हमको क्लासिफिकेशन की जरूरत है। Diversity demands classification. Right? Why? आप बोलेंगे why? So second point is classification brings unity in diversity. क्लासिफिकेशन में जो आपके पास विविधता वाले लोग हैं उसमें का एक यूनिक कैरेक्टर, ये सब विविधता वाले लोग हैं, इसका यूनिक कैरेक्टर 11th ये ग्रुप बन गया, राइट? जैसे ही मैंने बोला 11th तो आई एम फोकसिंग ऑन दिस ग्रुप. सो isn't it this 11th is unique character of this group? Okay, so अब मुझे बाकी के बारे में सोचना नहीं है, इतने ग्रुप पे ही फोकस करना है. यूनिक कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन ब्रिंग्स यूनिटी मतलब एक यूनिफॉर्मिटी इन डाइवर्सिटी, इन वेरिएशन. बराबर समझ लो, मैंने बोला कि 4 चेम्बर्ड हार्ट है, इज अ यूनिक कैरेक्टर. 4 चेम्बर्ड हार्ट है, बराबर. चलो, ये यूनिक कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को कौन से ग्रुप में अलॉट करोगे? बर्ड्स की मैमल्स, राइट? कि दोनों आर यू गेटिंग दिस यूनिक कैरेक्टर, राइट? ओके, मैंने बोला 4 चेम्बर हार्ट है और बॉडी पे हेयर्स, फेदर्स नहीं है, बॉडी पे हेयर्स है, तो क्या बोलेंगे? बर्ड्स की मैमल्स. समझ रहे हो ना, राइट? चलो प्लांट्स की बात करते हैं. टोटल प्लांट में, राइट, अलगा, अलगा, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. बोलो एक बार अपने से. 5 प्लांट के ग्रुप, मेजर प्लांट के ग्रुप जिसको डिवीजन बोलते हैं हम, राइट? 5 डिविजन्स ऑफ किंगडम प्लांटेई. फॉलो मी. 5 डिविजन्स ऑफ किंगडम प्लांटेई. अलगा, अलगा, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, राइट? चलो, सो ये 5 ग्रुप है आपके पास. मैंने थोड़ा ब्रीफ भी किया था आपको, राइट? अलगा पानी के अंदर होता है जिसपे आप फिसलते हो. ब्रायोफाइट लश ग्रीन वेलवेटी होता है, जमीन पानी दोनों लगता है, एम्फीबियन. ओके, टेरिडोफाइट फर्न नीचे, ओके, फर्न्स देखते हो ना, ऑर्नामेंटल प्लांट. जिम्नोस्पर्म जो कोन देते हैं, साइकस स्पाइनस. और एंजियोस्पर्म्स, राइट? एंजियोस्पर्म मतलब क्या है पता है? सुबह, दोपहर को, रात को, शाम को जब भी खाते हो ना, जो प्लांट खाते हो ना, वो एंजियोस्पर्म है, राइट? सो प्लीज, जिनको बोर हो रहा है, क्या सिखा रहे हो मैडम क्लासिफिकेशन हार्डकोर, राइट? तो उनको प्लीज बेटा एक रिक्वेस्ट है, जिंदा हो क्यों? एंजियोस्पर्म आपके लाइफ में है. अगर आपके लाइफ में एंजियोस्पर्म ना होते ना
वो क्या है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का यूनिक कैरेक्टर, ग्रुप एंजियोस्पर्म का यूनिक कैरेक्टर। एंजियोस्पर्म में हर वो जो प्लांट है उसके पास क्या है? फ्लावर, सीड इन फ्रूट। एंजियोस्पर्म की यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? यूनिक कैरेक्टर क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है? राइट? एंजियोस्पर्म का यूनिक कैरेक्टर जिसकी वजह से टोटल प्लांटेली से वो यूनिक कैरेक्टर की वजह से अलग हो गए। टोटल प्लांटेली डाइवर्सिटी, विविधता, उसमें के कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके पास वो यूनिक कैरेक्टर है। कौन सा? bearing flowers and seeds in fruit. Bearing flowers and seeds in fruit. Right? So that plant is called angiosperm. समझ रहे हो? So why we need classification? जब विविधता से डील करते हो तो यूनिक कैरेक्टर निकाल लो बाजू में। फ्लावरिंग प्लांट, सीड बेयरिंग प्लांट, नॉन सीड बेयरिंग प्लांट। यूनिक कैरेक्टर निकाल लो। फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने वाला, सेकंड स्टैंडर्ड में जाने वाला, थर्ड स्टैंडर्ड में जाने वाला, ये वो स्टूडेंट का यूनिक कैरेक्टर है। उसके अनुसार आप ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग करते हो। ओके, फ्लावर प्रोड्यूस करता है और सीड फ्रूट के अंदर है। प्लांट प्रोड्यूसिंग फ्लावर and seed within the fruit is called angiosperm and it is unique character of group division angiosperm. So ये unique character हमने कौन से प्रोसेस से दिया? क्लासिफिकेशन से, right? Okay, so classification brings unity in diversity. Third one, right? Classification has predictive value. देखो एक एक शब्द कितने अच्छे हैं। प्रिडिक्टिव वैल्यू। जस्ट इमेजिन आपको मैंने एक लॉन्ग बोन दिया, अभी लोकोमोशन सीखा ना, एक लॉन्ग बोन दिया, ओके, और मैंने बोला चलो बायोलॉजी पढ़ते हो ना, चलो बोलो ये एनिमल का नाम बोलो। आपने बोन को उल्टा पुल्टा करके देखा, उसके ग्रूव्स देखे, राइट? अंदर से हॉलो था, वो लंबा था, बड़ा। सो यू स्टडीड इट एंड यू टेल मी मैम इट मस्ट बी अ फीमेल ह्यूमन बीइंग। देखो आपने वो बोन के कैरेक्टरिस्टिक देख के वो बोन कौन से अनदेखे एनिमल में था वो मुझे बता दिया, यूनिक कैरेक्टर, राइट? आपने जैसे ही मुझे बोला कि मैम ये ह्यूमन फीमेल है, मैंने पूछा बोलो बच्चों हार्ट में कितने चेंबर है? आप बोलेंगे 4। मैंने बोला बच्चों बोलो क्रोमोसोम कितने थे वो ह्यूमन फीमेल की बॉडी के हर सेल के अंदर? तो आपने क्या बोला? 23 पेयर्स मैम। देन आई आस्क्ड बच्चों बोलो वो फीमेल को कितने फिंगर्स थे? आप यूनानिमसली बोल रहे हो 10, isn't it? देखो आपने क्या बात कर ली, वो फीमेल का बोन मिला है आपको, फीमेल काली गोरी आपने देखी तक नहीं, एक बोन मिल गया, आपने वो बोन को होमोसैपियन के फीमेल के ग्रुप को अलॉट कर दिया, तो वो ग्रुप के पूरे कैरेक्टर आप वो ऑर्गेनिज्म को अलॉट कर रहे हो, isn't it? प्रिडिक्ट कर रहे हो, कैरेक्टर अलॉट कर रहे हो, ये एनिमल होमोसैपियन की फीमेल है, राइट? वो देख के आप बाकी के कैरेक्टर प्रिडिक्ट करते हो, अंदाजा लगाते हो, जो वो ग्रुप के यूनिक कैरेक्टर्स है। Isn't it a wonderful thing? Right? See, if I said, वो पता है मेरे एक फ्रेंड का नाम रॉबर्ट है और वो यूएस में रहता है, राइट? बोलो तो उसको कितनी आंखें हैं? राइट? बोलो तो उसका इरेक्ट बॉडी पोस्चर है कि वो मेरा फ्रेंड है, होमोसैपियन है। तो अब आप शुरू हो जाते हो, 4 चेंबर हार्ट है, मैमल है, राइट? 2 आईज है, 10 फिंगर्स है, 10 टोज है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, दैट्स इट। Once you allot a unknown organism to group, all the properties of the group are allotted to
ऑर्गेनिज्म, राइट। सो एक बार आपने एक प्रेडिक्शन राइट कर लिया तो आपको ग्रुप मिल जाता है। ग्रुप मिल गया तो ग्रुप के पूरे कैरेक्टर्स वो ऑर्गेनिज्म को आएंगे। सो आई कैन इवन कंटिन्यू विद दिस। वंस unknown organism is allotted to group all properties, obviously unique, all properties of group are allotted to unknown organism। देखो क्लासिफिकेशन की वजह से कितनी आसानी हो रही है, राइट। प्रॉपरली मैं लिख के दे रही हूँ, क्यों? छोटी सी चीज है, चीजें स्किप होते हैं, समझती नहीं, राइट। ये क्लासिफिकेशन के बेनिफिट्स है। 1 2 3 4। वन मोर थिंग, क्लासिफिकेशन मेक्स द डाटा रिन्यूएबल, reusable and simple. Write down. Next point, write down. Fifth one, classification makes huge data, huge information renewable, reusable, and easy for studies, systematic studies। ठीक है, एक एक शब्द देखो। आपके पास ये पूरे हजारों स्टूडेंट है, उसका यूनिक कैरेक्टर से आपने ग्रुप बनाया, राइट। ओके, ये ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया, उनके कैरेक्टर, हर ग्रुप का कैरेक्टर, हर सब ग्रुप का कैरेक्टर अच्छे से लिखा, राइट। और 2-4 एग्जांपल लर्न के लिए, जैसे मैंने बोला प्लांट्स है, टोटल ग्रुप प्लांट, अलगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे 5 डिवीजन में आपने डिवाइड किया, राइट। ऐसे 5 डिवीजन में आपने डिवाइड किया। एंजियोस्पर्म को फिर से सब डिवीजन में बांट लिया। एंजियोस्पर्म के जो यूनिक कैरेक्टर्स है वो आपने लिख लिए, उसके 4 एग्जांपल लिख लिए, बराबर। आपका डेटा सिस्टमैटिक हो गया, आप बार बार उसको रिकलेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो, आप साइंटिस्ट हो, फॉरेस्ट में घूमते रहते हो, आपको कल और 5 एंजियोस्पर्म नए मिले, आपको नए और 5 एंजियोस्पर्म मिले, आपने उनको उठा के लेबोरेटरी में लाया, उनको फिर से स्टडी किया अच्छे से और एंजियोस्पर्म ग्रुप में रख दिया, तो आपने आपका डेटा रिन्यू किया। जो कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन थी उससे और आप अपने पास डाल दिए ना, आज के नए जो ढूंढे थे, isn't it? You renewed your data, reusable, आज यूज करो, कल करो, परसों करो, राइट। आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी आपने वो क्लासिफिकेशन का चार्ट बना के रखा, तो वो आगे की जनरेशन आपका स्टडी रीयूज कर सकती है, isn't it? प्रॉपर क्लासिफिकेशन, समझ रहे हो? चलो एक सिंपल सा एग्जांपल, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपने खोला ड्राइव या फिर सब फोल्डर्स, आप पीसी में गए, माय कंप्यूटर, राइट, अलग अलग ड्राइव। अब आपको पता है आपका गेम ई ड्राइव में है, सी ड्राइव में है, आपने बराबर वो खोला, उसमें फिर 100 थे, उसमें का जेड जो आपका था, उसके लास्ट फोल्डर में आपका गेम था, राइट, isn't it? आपने कंप्यूटर के इतने सारे इंफॉर्मेशन में से आपका पीसी लेके अलग अलग ड्राइव्स में का वो फोल्डर, उसके अंदर 2 मिनट में गेम ओपन करके खेलना शुरू। रिन्यूएबल, रीयूजेबल, डेटा हैंडलिंग इज सिंपल। जस्ट इमेजिन आपके कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम कुछ नहीं, आते हो डालते हो और पूरा इंफॉर्मेशन बस लिख के रखा है, नो क्लासिफिकेशन, फोल्डर नहीं, ड्राइव नहीं, कुछ नहीं, लाइन से रखा है। तो क्या आप 5 मिनट में आपका गेम खोल के यूज कर सकते हो, right? So are you reading the last point what we wrote? Classification brings the data
ह्यूज डेटा, रिलेवेबल, रीयूजेबल, इजी फॉर स्टडीज, राइट। सो सेम काम बेटा, जैसे आपका पीसी होता है वैसे आपका ब्रेन है। आप जो पढ़ते हो अभी बॉटनी का, तो आपके ब्रेन में स्टोर होता है, बराबर। आपको उसको बार बार यूज करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, डाउट पूछना है, तो और जैसे पीसी में सेव करते जाते हो ना, जैसे आपके ब्रेन में जितना रिवीजन करोगे उतना कंटेंट सेव होते जाता है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज पावर ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लियर, राइट। अब देखो क्लासिफिकेशन में ये जो मैंने सिस्टम आपको बोला, राइट, ये सिस्टम में हम हमेशा दो चीजें यूज करते हैं, ओके। हम हमेशा दो चीजें यूज करते हैं। एक तो ये ग्रुप का नाम होता है और ग्रुप के अंदर बैठने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम होता है। ग्रुप का नाम है जीडीज बायोलॉजी क्लासेस, और ग्रुप के अंदर के ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग होगा जो आपके पास है। आर यू गेटिंग द थिंग, राइट। सो क्लासिफिकेशन के वक्त हम ग्रुप के हायरार्की को नाम देते हैं, अलॉन्ग विद दैट इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी नाम देते हैं, राइट। उसके लिए प्रिसाइज वर्ड्स यूज होते हैं, कैटेगरीज एंड टेक्सास, राइट। सी डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, राइट, dogs, cats, mammals, plants. Isn't it name of living organism? Right? Mangifera indica. Isn't it name of living organism? Plants. Isn't it name of living organism? Living organism के नाम को हम बोलेंगे टेक्सा। लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम को हम क्या बोलेंगे? टेक्सा, राइट। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप क्लासिफिकेशन में कौन से लेवल पे बैठता है, राइट। प्लांट इज किंगडम, मैंजिफेरा इंडिका इज स्पीसीज। ये जो लेवल है उसको हम कैटेगरी बोलते हैं। नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टेक्सा एंड कैटेगरी, राइट, मैंजिफेरा इंडिका इज नेम, वो कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है? स्पीसीज। प्लांटी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है? किंगडम, राइट। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ, कैटेगरीज एंड टेक्सा। राइट डाउन टाइटल, कैटेगरीज एंड टेक्सा। Categories, taxa, right? See what I have drawn, steps, right? Okay, and isn't it arrangement in a specific manner? Ascending, descending. Arrangements in a specific manner, for that we use the word hierarchy. याद है कल? Yesterday we discussed structural hierarchy. चलो बोलो रिवाइज करते हैं। स्ट्रक्चरल हायरार्की, एटम, मॉलिक्यूल्स, ऊपर कौन था? बायोमॉलिक्यूल्स, राइट। देन बायोमॉलिक्यूल के ऊपर, बायोमॉलिक्यूल से बना है ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स से बनेंगे सेल, सेल से बनेगा टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। इजंट इट स्ट्रक्चरल हायरार्की, छोटे से बड़ा। वैसे ही ये टेक्सोनॉमिक की हायरार्की है, छोटे से बड़ी। सबसे बड़े स्टेप का नाम है किंगडम, सबसे बड़े स्टेप का नाम है किंगडम, सबसे छोटे स्टेप का नाम है स्पीसीज। दिस इज हाईएस्ट कैटेगरी, लोएस्ट कैटेगरी। कैटेगरी इज रैंक, कैटेगरी इज लेवल, हाईएस्ट रैंक, लोएस्ट रैंक। Category is a rank, level of classification, right? So ये step का नाम category है। Step पे बैठे वाले species mango, ये mango क्या है? ये है living organism का नाम, right? Isn't it?
लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम है, इसको हम बोलेंगे टिक्सा। ये कैटेगरी किंगडम, प्लांट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम, तो ये है टिक्सा। तो मैंने आज बस 2 कैटेगरी के नाम सिखाए आपको। हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम, किंगडम कैटेगरी encloses plants, members of plantae. Plantae is a taxa. कैटेगरी किंगडम, ये स्टेप पे बैठे वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम, ये स्टेप पे बैठे वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम, इसको हम बोलेंगे टेक्सा। स्टेप का नाम कैटेगरी, स्टेप पे बैठे वाले ऑर्गेनिज्म का नाम टेक्सा। ये लोएस्ट स्टेप का नाम स्पीसीज, उस पे बैठे वाले ऑर्गेनिज्म का नाम टेक्सा, राइट। ये टेक्सा कौन है यहाँ पे, मैंगो। आप बोलेंगे मैडम हिबिस्कस बिठा दो, हाँ बिठा दो। व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, डॉग, कैट, these are all species. Animals, kingdom Animalia, right? Dog, cat, monkey, species. Are you getting that? So step का नाम कैटेगरी, किंगडम इज कैटेगरी, ये स्टेप पे बैठे वाला टेक्सा। अगर किंगडम प्लांटें बोलती हूँ तो ये प्लांट ये किंगडम कैटेगरी को अलॉट होते हैं। स्पीसीज मैंगो बोलती हूँ तो वो कैटेगरी स्पीसीज को अलॉट होते हैं। कैट बोलो, डॉग बोलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ रहे हो, राइट? सो कैटेगरीज एंड टेक्सा डिटेल में और देखना है, डिफरेंसेस भी लिखने हैं, ओके। जस्ट टू रीड द कंटेंट, क्लासिफिकेशन, पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। सो आई एम ऑन पेज नंबर 7, राइट? Can you see the bold classification? Okay, see now. Since it is nearly impossible to study all living organisms, 30 billion, 1.8 classified. It's impossible to study them without classification. Okay, so see, since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make it possible. ये विविधता को पढ़ने के लिए हमको कुछ मीन्स, कुछ मेथड डेवलप करना पड़ेगा। This process is classification. और अभी पहला देखो, पहला कैरेक्टर आपने लिखा, diversity demands classification. Isn't it the meaning of this bottom line? Why you need classification? Because you are dealing with diversity. Diversity demands, diversity की वजह से classification का branch open up हुआ, right? Okay, so diversity demands classification. Classification is a process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. Classification is merely grouping, subgrouping on the basis of similarities and differences which are clearly visible. Right? Flowering, non-flowering, animal, plant. This is classification. Now, for example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats and insects. देखो मैं dog बोलती हूँ तो आपके आंखों के सामने एक animal आता है, because you know that these properties means a dog. When I say animal, you can see dog, cat, insect, bird, even you, right? So you know that being animal, these are the properties, right? So total organism में animal बोला तो आप कितने लोगों को याद करते हो, dog बोला तो animal के अंदर कितने लोगों को, छोटे कितने लोगों को याद करते हो, समझ रहे हो, right? So this is how this classification is bringing unity and diversity and making groups and subgroups. देखो हमने जो points लिखे वही अवघड़ भाषा में यहाँ पे है। Diversity demands classification. Classification brings unity and diversity. चलो आगे बढ़ते हैं। Classification is merely grouping, subgrouping by considering extent of similarity and differences. आगे तीनों पॉइंट पहले 4 लाइन में। चलो next one. For example, we easily recognize groups such as animal or plants or dogs, cats, insects. The moment we use any of this term, we associate certain character with the organism in that group.
आपके सामने आ जाता है, वो कैरेक्टर आप उसको अलॉट करते हो. What image do you see when you think of dog? Obviously, each one of us see dogs and not cats, because for us it's clear. Like this, ये characteristic feature मतलब dog, ये characteristic feature मतलब cat. It's clear in our mind. Why? Because we have classified them. No confusion. Classification नहीं किया तो confusion है, right? See. Now, if we were to think of Alsatians, we know what we are talking about, right? Similarly, suppose we were to say mammals, सस्तन प्राणी. Okay, you would of course think of animal with external ears, body hair, okay, body hair, external ear is characteristic feature of mammal. Likewise, in plants, if you try to talk of wheat, you will readily get the plant like grass. If the picture of each of our mind will be of wheat plant, not rice or any other plant. Hence, all the dogs, cats, mammals, wheat, rice plant, animal, etc. are convenient categories. ये छोटे छोटे ग्रुप है, ये convenient छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए, right? जो एक कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, right? See, we used to study organisms. The scientific term for this category is a taxa. ये कैटेगरी पे प्लांट बैठे हैं, तो ये कैटेगरी को प्लांट टेक्सा बिलोंग करता है. ये कैटेगरी स्पीसीज को मैंगो, डॉग, कैट बिलोंग करता है. सो ये कैटेगरी है स्टेप, उसको बिलोंग करने वाला ये है टेक्सा, right? Okay, see. The scientific term for this category is taxa. Here you must recognize that taxa can indicate category in every different level. Right? ये different levels है classification के. ये rank 1 है, right? ये rank 1 है, ये rank 2 है, ये rank 3, 4, 5, 6 और ये 7. ये स्टेप का नाम कैटेगरी है. ये स्टेप पे बैठने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम टेक्सा है. मैं जो बोल रही हूँ उसको बहुत अच्छे से सुनो. एनसीईआरटी के कंफ्यूजन स्टेटमेंट्स है, हाँ, ठीक से सुनो. स्टेप का नाम है कैटेगरी, स्टेप पे बैठने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम, उसके ग्रुप का नाम टेक्सा, राइट? सी, wheat is also taxa. Similarly, animals, mammal, dogs are taxa. Mango, jawar, bajra, wheat, dog, cat are taxa. Allotted to category species. Right? See. But you know that a dog is a mammal, but mammals are animals. Right? ये dog है, mammal यहाँ पे है और ये animal यहाँ पे बैठा है. So, isn't it? ये dog, right? एक mammal का प्रकार है जो animal बड़े ग्रुप को अलॉट करता है. मैंगो एक प्लांट का प्रकार है, राइट? ये किंगडम प्लांट ट्री को अलॉट करता है, समझ रहे हो, राइट? सो दिस इज व्हाट इज हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, चलो राइट डाउन डिफरेंसेस. बहुत समझ के देखो. डिफरेंसेस, कैटेगरीज, टेक्सा. मेक टू कॉलम. कैटेगरीज, टेक्सा. Categories, taxa. Categories, taxa. लिख लिया. Write down first point. Category is rank or level. Level number 2, level number 2, level 3. Category is rank or level of classification. Step ये category है, right? Write down taxa. Living organisms. Step पे बैठे वाले living organism जो मैंने रेड पेन से लिखे हैं, right?
मैंने ब्लैक ब्लू से कैटेगरी लिखी है और रेड से मैंने टेक्सा लिखा है, बराबर। टेक्सा लिविंग ऑर्गेनिजम्स नेम और इट्स ग्रुप्स नेम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नेम और इट्स ग्रुप्स नेम is a taxa. Dog, right? Mango, बराबर। ओके, अब डॉग को भी आप नाम दे सकते हो, इंडिविजुअल नाम हो सकता है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे बोलूं ये स्पीसीज पे बैठे हैं ह्यूमन बीइंग्स, सो ह्यूमन बीइंग के ग्रुप है। ओके, Avni, then Vichita, then Rishabh. Okay, among you are each individual. Are you getting that? So all these names, either individual name or group of name, is taxa. It is taxa. Right? And our next point. There are 7 important categories. There are 7 important, obligate, important option slash लेके लिखो, obligate, compulsory. There are 7 obligate, OBLIGAT, important obligate categories. Okay, so category देखो, step के number 7, right? टेक्सा, यहाँ पे आ जाओ। टेक्सा मैंगो, राइस, ज्वार, बाजरा, डॉग, कैट, टाइगर, एनिमल, यू, वी, राइट? कितने टेक्सा है? मेनी। प्लांट, एनिमल, फंगाई, राइट? दे आर के डिफरेंट किंगडम्स। सो कैटेगरी नेम स्पेसिफिक, टेक्सा मेनी, राइट डाउन, नेम ऑफ टेक्सा मेनी, बराबर, राइट? अब ठीक से सोचो, ठीक से सोचो। ये है स्पीसीज कैटेगरी, ये एक कैटेगरी को कौन कौन अलर्ट करना है? मैंगो, होमो सैपियन, डॉग, कैट, व्हीट, ज्वार, बाजरा, राइस। सो मेनी टेक्सा आर अलॉटेड टू वन कैटेगरी, मेनी टेक्सा आर अलॉटेड टू one category, right? Many tags are allotted to one category. One taxa is not allotted to many category. Mango, मैंगो टेक्सा को आप किंगडम को अलॉट नहीं कर सकते हो, वो स्पीसीज को ही जाता है। समझ रहे हो ना? शब्द छले बच्चों, अच्छे से सुनो। राइट डाउन व्हाट यू रोट। वन कैटेगरी इंक्लूड मेनी टेक्सा, उसका अपोजिट पॉइंट लिखो। वन टेक्सा इज नॉट अलॉटेड टू मेनी कैटेगरी, इट इज अलॉटेड टू वन कैटेगरी ओनली, राइट? समझ रहे हो? चलो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी राइट, कैटेगरीज hypothetical, imaginary word, categories hypothetical, imaginary, taxa is real term represented by living organism. Taxa is real term represented by real organism. समझ रहे हो क्या लिख रहे हो? देखो ये जो स्टेप है मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किए, आपको नेचर में दिखते हैं कैसे कि ये हाईएस्ट कैटेगरी के देखो प्लांटेरी लोग बैठे हैं, यहाँ पे देखो स्पीसीज लोग बैठे, ऐसा दिखता है नेचर में। ये जो स्टेप है
इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। आप मुझे बोलेंगे मैडम बताओ तो किंगडम बताओ, किंगडम। आप मुझे बोलेंगे स्पीसीज बताओ, स्पीसीज। बोले बच्चों ये ना दिखाई नहीं देता, ये ना कॉन्सेप्ट है, राइट? ये एक इमेजिनरी डेफिनेशन है जो हम मेरे दिमाग में एग्जिस्ट करती है, मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रही हूँ। किंगडम फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। किंगडम इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग ब्ला 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 सिमिलर कैरेक्टर्स। इट्स मैन-मेड, आर्टिफिशियल, हमने बनाया है, राइट? ओके, लेकिन मैंगो, आप मुझे बोलेंगे मैंगो बताओ मैडम, झट से मैं आपको प्लांट लाके बता दूं। So, mango, cat, dog, it has real existence. It is represented by a living organism. So it is a real term, physical existence, right? And can be representable. But category is a hypothetical, abstract term. वो मेरे दिमाग में एग्जिस्ट करती है, मैं आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट डालने की कोशिश कर रही हूँ, बताने की इतनी सक्सेसफुल हो रही हूँ, राइट? तो नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में सीखेंगे तो पक्का समझ जाओगे, राइट? कैटेगरीज एंड टेक्स्ट, अंडरस्टूड, राइट? ये डिफरेंसेस बार बार पढ़ो, समझो। ओके, सी यू देन।